Hello, everyone. Greetings for the day. I'm Priyanjali from All About Skin Wellbeing team. I'm sure all of you must be keeping good health. We all know taking good care of your skin is important for more than just your appearance. As the largest organ, your skin becomes the most essential to your overall health. A fungal infection is very common on your skin or nails. Fungal infection or mycosis are diseases caused by yeast or mold. My fungal skin infections can look like a rash, can be itchy, and annoying. So let's connect today with our skin expert, Dr. Gunjan Mehta, live from Mandsaur to enlighten us on the topic of fungal infection. Dr. Gunjan Mehta is a leading dermatologist and hair restoration expert in Mandsaur, Madhya Pradesh, practicing at the Mehta Skin Laser and Hair Transplant Center with a focus on advanced cosmetic procedures. The clinic specializes in hair transplants, laser hair removal, and medical dermatology. He has received his hair restoration fellowship from Israel, and Dr. Mehta's clinic has started in the year 2024 and has completed around 200 successful hair transplants. And today, we are extremely delighted to have him here with us on the screen. A very warm welcome to you, Doctor. Today, we are going to talk about a very common topic, which is the fungal infection and how can we deal with the same. So, before we dive into the topic, Doctor, tell us what exactly is this fungal infection that we're talking about? Hello everyone, myself Dr. Gunjan, and I'm giving a live session on the fungal infection. It's how to take care of it, and we will be planning for the treatment, how to manage, and there are many other types when we see in regular OPD and regular clinical aspects of the dermatology. This is the main focus disease, which is need it proper treatment for around 6 months or maybe 1 year, because sometimes people used to take this type of treatment in a very common way and they don't go to the dermatologist. It- That's how it goes on. So right now I need to go by the way that it is a disease where it can occur to any age group. So we need to plan the treatment accordingly. Right. Now, moving ahead, Doctor, um, to treat any condition or any disease, identifying the condition is very important. So tell us, how do we identify the condition in the initial stage? What are the early symptoms like? Early symptom is a itchy rash which can be seen on the particular area zone. The patient used to complain of there is a severe itching more at night and more on the areas where which is hidden, like on the areas of the genitals, on the thigh area, butt lines, underarms, and even it can occur on the face. So early signs are more of itching, and this type of rashes can aggravated more when the patient used to apply self-medication. Itching and burning sensation, and sometimes it can be pus-filled lesion, which can be seen when they had not taken a proper dose or treatment. Right, right. Doctor, tell us, does different fungal infection in different part of the body has different causes behind it? Yeah, sometimes we can see some cases which used to come to early stage, like neonatal fungus. It can due to because of the diaper rashes. As we see, there will be differential diagnosis on the genital areas. There are some areas where we can see around the age of 5 to 10 years where the patient used to go for the swimming. The children used to have a sweat areas which are more common because after taking the bath, the chlorinated skin may get more of disease, and it more occur in the areas where in the summer areas, summertime. So we used to see the cases more on the face and even on the genitals area. So right now, some adulthood also we can see after 70s, the patient used to be on the beds. So air beds are not properly cleaned and hygiene is not maintained. And the farmers used to come in these periphery areas. So that farmers used to having a
working lifestyle modification should be very important because they are working in around 40 to 45 degrees more at the time of the humidity, and the sunlight exposure make the things more prone for the disease to get aggravated, and the disease can be more transmitted because as it is a contagious, so we need to be planned. And for the treatment line and for the hygiene, I will tell you in the next. Right. Now, doctor, that you have mentioned that fungal infection is contagious. Uh, तो हमें बताइए कि अगर डॉक्टर घर पे अ, कोई भी फैमिली मेंबर सफर कर रहे हैं फंगल इन्फेक्शन से, तो घर के सिचुएशन में हम कैसे प्रिवेंशंस ले सकते हैं टू स्टे अवे फ्रॉम द कंडीशन? जी, जी। जहाँ पर भी जिस जने को फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, मे बी कोई भी एरिया बॉडी पार्ट्स के हो, तो उनके साथ अगर वो पेशेंट ट्रांसमिशन को रोकना चाहता है, तो नंबर 1 हमें बहुत देर तक नहीं नहाना चाहिए। एकदम गर्म पानी से नहीं हुँ। नहाना चाहिए। हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे नेल्स छोटे होने चाहिए और हमारे जो कॉम्ब्स हम यूज़ कर रहे हैं, मे बी फंगस स्काल्प पे भी हो सकता है, तो उसका क्लीनिंग होना चाहिए और वो सेपरेट होना चाहिए। और हमें ध्यान रखना रहेगा कि हमें बहुत ज़्यादा नॉन-वेज डाइट जैसे कि चिकन, फिश, एग ऐसी चीज़ें हीट एनर्जी बहुत रिलीज़ करती है और उस कारण से बहुत ज़्यादा फंगस एक्टिवेट होते हैं। और शुगर के पेशेंट में और ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ें ना बढ़े और हमें हमारे कपड़ों को आयरन करना चाहिए। इवन द अंडरगारमेंट शुड बी आयरन प्रॉपर्ली एंड इट शुड बी एक्सपोज्ड टू द सनलाइट। कई बार बारिश की नमी के कारण कई बार ऐसा होता है कि कपड़े वैसे प्रॉपर नहीं सूखते हैं और उसी के कारण वो फंगस दूसरे जन को भी ट्रांसमिट हो सकता है। और सेम ट्यूब एप्लीकेशन अगर परिवार कर लेता है, तो कई बार वो फंगस के वेरिएंट्स उस ट्यूब से पूरे सेटल नहीं होते बिकॉज़ हर की बॉडी है, हर की स्किन है और हर का स्किन का टाइप है। राइट, राइट। डॉक्टर, हम आई थिंक जितने भी लोग अभी फ़िलहाल ये लाइव सुन रहे हैं या देख रहे हैं हमें, हम में से मैक्सिमम लोगों को ये पता है कि मॉइस्ट एरिया में फंगस जो है उसके ग्रो करने के पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा ट्रांसमिशन रहते हैं। बट आज आज हमने एक नया चीज़ जाना है कि जिस खाने में ज़्यादा तासीर होती है या गर्माहट ज़्यादा होती है, वैसे खाने को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर, हमें बताइए, क्या शुगरी फूड, मतलब ज़्यादा मीठा खाना या बाहर के खाने ज़्यादा खाना यानी ज़्यादा फ़ास्ट फूड खाना, क्या ये सब भी ट्रिगर्स हो सकते हैं फंगल इन्फेक्शन के लिए? हाँ, यस, यस। ये ट्रिगर्स हो सकते हैं और बेसिकली हम रोज़ ओपीडी में देखते हैं कि पेशेंट अपनी हिस्ट्री में बताता है कि मैंने बाहर इवन द अल्कोहल कैन ट्रिगर, इवन देयर इज़ अ नॉन-वेज डाइट। अगर बहुत ज़्यादा सॉल्ट हुँ। कंटेंट वाला हो, बहुत ज़्यादा तला-गला फूड हो, तो ये चीज़ें ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, जिसके कारण जो भी वेरिएंट्स ऑफ फंगस है, वो ट्रांसमिशन दे सकते हैं और अगर एक्चुअल डिसीज़ जो है, उससे वो थोड़ा-सा और एग्रीवेट कर सकते हैं। राइट, राइट। सो जितने भी व्यूअर्स हैं जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं फंगल इन्फेक्शन से या उनके नियर एंड डियर वन सफ़र कर रहे हैं, सिर्फ़ दवाई खाने से या एप्लीकेशन से ही फंगल इन्फेक्शन दूर नहीं हो सकता है, ये हमें समझना पड़ेगा। हमें अपने लाइफ़स्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस बहुत जी, ज़रूरी है, आज डॉक्टर जी। हमारे हमें बहुत यही कह ज़रूरी रहे है, हैं। बहुत राइट। ज़रूरी। हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं और अगर हमारा कंटेंट ऑफ वाटर लो होता है, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि हाइड्रेशन अगर हमारा कम होता है, तो ये भी एक बड़ा कारण है कि ह्यूमिडिटी का, प्रेशर का पॉइंट्स और क्रिएट होता है और इसी कारण उनको एक चांसेस मिलता है ट्रांसमिशन का और दैट्स व्हाई द डिसीज़ गेट राइट, राइट। एक्टिवेटेड। सो मोस्ट सो कॉमनली सिर्फ़ लोगों पेशेंट से इज़ दूर। वेरी कॉशियस। वो कभी बताना नहीं चाहता है कि मुझे ऐसा हुआ है, तो दे बिकॉज़ ऑफ हुँ। शर्मा-शर्मी एंड व्हाटएवर द बिहेवियर दे फॉलो, उस कारण से उनको वहाँ जाके मेडिकल स्टोर पे जाके दे बाय द ट्यूब्स कि दरार का ट्यूब दे दो, व्हाट यू कॉल एज़ अ फंगस और लाल दाग। सो उसको आप लगा लो और वो बताना नहीं चाहता है एज़ अ डॉक्टर को, प्रोफेशनली वो नहीं आ पाता है। तो समटाइम दिस इज़ अ मेन फैक्टर कि अगर वो डर्मेटोलॉजिस्ट को नहीं चेक कराए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेडिकल स्टोर जाता है, देन वहाँ से वो ट्रांसफर होता है टू द लोकल डॉक्टर, आरएमपीज़ आप सुनते होंगे एंड देन वो जाता है एमबीबीएस के पास, देन एमडी मेडिसिन के पास एंड देन वो आता है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। तो दिस चेंज मेक द थिंग्स मोर प्रोन कि वो डिसीज़ इतनी ज़्यादा रेज़िस्टेंट हो जाती है कि हमारे आने तक 6 हुँ। महीने हो जाते हैं एंड दे एक्सपेक्ट अ लॉट।
कि फर्स्ट डे से ही राइट, दे शुड गेट द ट्रीटमेंट व्हाट इज नॉट एक्सपेक्टेड। तो कहीं न कहीं हम अवेयरनेस के लिए अगर ये वीडियो फ़ेसबुक लाइव पे है और पेशेंट्स अगर सुन रहे हो या जो भी सुन रहे हो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कि अगर आप डे 1 पे आते हैं तो देयर विल बी अ चांसेस कि ड्रग के लीस्ट साइड इफ़ेक्ट आपको फ्यूचर में होंगे बिकॉज़ देयर आर समटाइम्स जो ड्रग्स हमें लंबे समय तक चलानी हो वो कम चले और उसके साइड इफ़ेक्ट भी कम होंगे जो कि मैं हाइलाइट्स कर सकता हूँ अगर आगे इस पे बात तो राइट, राइट। आई मीन आज इस लाइव का एक ही मोटिव है कि हम अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहेंगे लोगों के बीच में। काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है कि किस कंडीशन के लिए किस कैसे डॉक्टर के पास जाना है। हमें अपने राइट एक्सपर्ट्स भी हम चूज़ नहीं कर सकते हैं। आजकल लोग यूट्यूब पे रिलाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, चैट जीपीटी कर लेंगे, गूगल कर लेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाते हैं लोगों को और ऐसे ही लोग सेल्फ ट्रीट भी कर रहे हैं अपने आप को खुद को। सो गोइंग टू योर राइट एक्सपर्ट पहला स्टेप जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप इज़ मोस्ट जी। इम्पोर्टेंट सी द डिग्री ऑफ द डॉक्टर। Is he done हुँ, the degree properly? Like for myself, if I have done MBBS DVD or MBBS DNB or MBBS MD, this is the course need to be done. अगर ये तीनों डिग्री जी। में से कोई भी एक डिग्री हो तो वो क्वालिफाइड है डर्मेटोलॉजी, स्किन, कुष्ठ रोग, गुप्त रोग, फंगल इन्फेक्शन या हेयर। हुँ, आप जाएँ, आपको हज़ारों जगह ये मिलेगा कि मैं चमड़ी का इलाज करता हूँ। तो कोई भी बीमारी के लिए रेडी हो जाता है, चाहे वो एमबीबीएस डॉक्टर हो, बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, तो दे आर क्वालिफाइड टू ट्रीट द बेसिक थिंग्स। बट अगर आप एक डिसीज़ के बारे में जानें, तो ये स्किन स्पेशलिस्ट का ही काम है। जैसे दाँत निकालने जाते हैं, तो भाई डेंटिस्ट का ही काम है। नेफ्रो के हुँ, पास हुँ, जा रहे हुँ। हैं तो किडनी का ही काम है, न्यूरो के पास जा रहे हैं तो कहीं न कहीं इस ब्रांच के बारे में आधे लोगों को ये लगता है कि चमड़ी का तो कोई भी इलाज कर सकता है। तो राइट। वही हमारा एक मिथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अवेयर इसी जगह मंदसौर में करते हैं बिकॉज़ यहाँ आई वाज़ द फर्स्ट डर्मेटोलॉजिस्ट इन दिस सिटी सिंस 2014 हुँ, सो आई वाज़ लिटरली शॉक्ड व्हेन द पेशेंट यूज्ड टू कम एंड से कि सर आप तो सिर्फ़ स्किन का देखते हो, हेयर का थोड़ी देखते हो। तो आई वाज़ लाइक शॉक्ड हुँ, कि सबसे बड़ा ऑर्गन है, हेयर से लेके हुँ, टू हुँ। तक दे आर नॉट नोइंग कि किसको दिखाना है। तो वहीं पेशेंट एग्ज़ैक्टली। थोड़ा-सा टिल 12 इयर्स अभी थोड़ा प्रोफाउंड हो गया है कि पेशेंट यूज्ड टू अवेयर गूगल करता है कि बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट कौन है, हुँ, कहाँ हुँ। जाना चाहिए। तो अवेयरनेस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट की फॉर दिस टाइप ऑफ राइट। डिसीज़ बिकॉज़ ये क्रोनिक है और कहीं न कहीं जी। 4 से 6 महीना तो मिनिमम इसका इलाज चलेगा। और हुँ, हुँ, पेशेंट हुँ। के माइंडसेट में होता है कि एक जादू की छड़ी होगी और डायरेक्ट एक दवाई से ही हो जाए, तो ऐसा नहीं है। इसमें पेशेंस जी, बहुत रखना पड़ता है। लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन पे मैं बहुत बात करता हूँ, बिकॉज़ आई यूज्ड जी। टू वर्कआउट। हम लोग भी जाते हैं, साइक्लिंग करते हैं 45 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स, वर्कआउट करते हैं। उसके बाद स्वेटिंग का पार्ट होता है, तो हमें कहीं न कहीं एंटी फंगल पाउडर्स रखते हैं, हम सनस्क्रीन प्रॉपर हुँ, लगाते हैं, हम उस जगह को हुँ, मॉइस्ट होने हुँ। से बचाते हैं। तो कहीं न कहीं जी, ये डिसीज़ के वेरिएंट होने के कारण ये चीज़ें और बढ़ती हैं। लूज़ क्लॉथ्स पहनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों का नहीं तो ऑन जो वर्किंग लाइफ है, उस टाइम ही उनको इतना सीवियर इच होता है कि दे गेट पज़ल्ड और फिर वो नहीं आ पाते एंड दे गोज़ टू द मेडिकल स्टोर और बाय अ राइट, ओटीसी प्रोडक्ट ऑफ द काउंटर सेल राइट, and which is very, very tough for us to treat later on because it राइट। contains steroid like Pendam, Tigodam, Tinadam, Sapatmalam, Btex. This type of derm tube should not be used because this derm हुँ, tubes which contain steroids will make the things better for 1 to 2 days and then later on the disease will get more resistant and aggravated after going in a proper way. So we need to do more राइट। investigation, more medicine। फिर आता है कि डॉक्टर्स लूटते हैं, डॉक्टर्स बहुत जी, फीस ले रहे हैं, डॉक्टर्स बहुत मेडिसिन दे रहे हैं। So by this राइट, Facebook Live, I want to express my feeling. If you come earlier, the things will be more better for yourself, not for us, because as we had done the studies for this, so राइट, राइट। सो जितने भी लोग
आजकल बड़े फॉन्ड है रिसर्च के पीछे। आई थिंक आपको सही जगह रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। आप रिसर्च कीजिए, बट अपने अपने राइट एक्सपर्ट ढूँढने में रिसर्च कीजिए, रादर देन फाइंडिंग द सॉल्यूशन फॉर द कंडीशन जो कि जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है करने की। यू हैव डेडिकेटेड पर्सन टू डू दैट वो टास्क। सो रादर देन रिसर्चिंग ऑन द मेडिकेशन, आप एक्सपर्ट पे रिसर्च कीजिए कि Medication, you should research for the proper doctor राइट, because everybody राइट, on the राइट। Instagram come ki this type of face wash, this is for oily skin, हुँ, this is हुँ। for dry skin. They come on Instagram and say retinol रात को लगाओ, niacinamide इस जी। time लगाओ. So this make the thing कि वो influencer हैं. They got the money for हुँ, this. हुँ, हुँ। And I have no skin, I एग्ज़ैक्टली। have no area of interest in that. But आप एटलीस्ट उस चीज की स्टडी करो और एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट फिर हमारी ब्रांच को इसी तरह फिर लोग लेंगे दे विल फील ए जोक कि भाई क्यों जाना एक अच्छे डॉक्टर के पास, वो स्किन तो ऑनलाइन देख नहीं रहा, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट पे ऑफ दे रहा है and आपको घर आके डायरेक्ट दवाई मिल रही है, फिर रिएक्शंस बढ़ता है, बाद में एक्सपेक्टेशन हमसे बढ़ती है कि आप जल्दी ठीक करो बिकॉज जी, वॉट एवर दे हैड बाय उसमें वो कंटेंट है कि नहीं जो उनकी स्किन के लिए जरूरी। जी, जी। नाउ जितने भी लोगों को लगता है कि जैसे आपने कहा कि वो लोग बड़े कैज़ुअल है व्हेन इट कम्स टू देयर स्किन, उनको लगता है कि कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई कर देंगे और जल्दी-जल्दी ठीक हो जाएगा, डॉक्टर तो है ही, डॉक्टर सँभाल लेंगे। डॉक्टर हमें हाँ, बताइए वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? अगर कोई इस कंडीशन को लंबे वक़्त क तक प्रोलॉन्ग कर रहा है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकते हैं उनके लिए? मैम आप बिलीव नहीं करेंगे बट हमारे पास 21 लोगों की टीम है स्किन डिपार्टमेंट की मंदसौर में ही। और एमपी जी। में हमारा ये थर्ड या फोर्थ सेंटर है जो इतनी बड़ी टीम के साथ ये वर्क कर रहा है। तो एक जन सिर्फ टेक ए पिक्चर्स पेशेंट के पिक्चर्स बिफोर आफ्टर्स लेता है बिकॉज वो इतना हुँ, ज़्यादा हुँ। स्टेगनेट पोजिशन व्हेन दे कम इन द ओपीडी एरिया वी गेट टू नो फ्रॉम आउटसाइड ओनली कि उसने कुछ गलत ट्यूब लगा रखी है। आई वॉन्ट हुँ, हुँ, टू हुँ। से द नेम ऑन द फेसबुक लाइव बिकॉज मे भी किसी एक को पर्सन को भी आज आपकी और मेरी बात से इम्पैक्ट पड़ जाए तो शायद वो डेरोबिन जैसी क्रीम ना यूज करे बिकॉज डेरोबिन एक कंटेंट है जो कि एसिड मटेरियल होता है एंड गांव में उसको बहुत अच्छे से दिया जाता है ताकि वो पूरा फंगस एक ही बार में बेड की तरह हट जाए। तो हम देखते जी। हैं कि इतना एक्सट्रीम लेवल में बढ़ के आता है कि देर आर पेशेंट हु आर गेटिंग डाइवोर्स बिकॉज ऑफ दिस, देर आर पेशेंट हु हैव नो लाइफ इन देयर होम ओनली दे आर सेपरेटेड कि भाई तुम्हें एक छुआछूत वाली बीमारी है। सो कहीं ना कहीं दे हुँ, आर हुँ, मोर हुँ। इन साइकोलॉजिकली डिप्रेसिव एंड दे यूज टू कम टू अस कि सर मुझे बचा लो नहीं तो मैं सुसाइडल टेंडेंसीज का एक माइंडसेट मेरा बन रहा है बिकॉज घर से भी मुझे अलग कर दिया, खाना अलग कर दिया, मेरे साथ लाइफ के बहुत सारे इम्पैक्ट ऐसे चल रहे हैं कि मैं किसी के साथ बात नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स नहीं। So kahin na kahin this counseling is very important. So we have 3 to 4 counselors. They help out. They talk to the patient. They say कि आप पहले जो कर रहे थे बहुत गलत है। आप मेडिकेशन हुँ, हुँ, हुँ। तो चलेगी, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, वर्कआउट, एक रूटीन लाइफस्टाइल आपका मॉडिफाई कीजिए बिकॉज दिस एरिया हैज द मोस्ट रिच इन द सॉइल फॉर द अफीम, द ब्लैक गोल्ड इन द वर्ल्ड, Mandsaur. राइट, In this राइट। area, having a soil fertile more in this type of spices. अगर आपने सुना हो यहाँ पर हुँ, सबसे अच्छी मिर्ची की खदान होती है, तो मिर्ची जी। यहाँ के लोगों को बहुत एक्सपर्टली दे यूज टू हैव द स्पाइसी फूड। सो हुँ, हुँ, जैसे हुँ। आप अगर बॉम्बे में हैं तो वहाँ पाटिल होते हैं, यहाँ पर पाटीदार होते हैं। तो यहाँ पर हुँ, वैसे ही है कि उन लोग का जो एक क्राइटेरिया है कि हर फूड में दे नीड ए सेव। तो कहीं न कहीं हुँ, उनका जो हुँ। ऑयल कंटेंट है, उसका जो बेसन का यूज़ है, हर चीज़ ऑलरेडी पहुँच जाता है। तो हमें कहीं न कहीं हुँ, उससे कंटेंट को कम करना बहुत ज़रूरी है। पोस्ट करेंगे यस, जी, इस चीज़ में कि जी। भई ऐसा इतना ज़्यादा फूड पे नहीं होता है, सब कुछ मेडिसिन्स पे होता है। बट मेरा फर्स्ट हुँ, क्राइटेरिया ये रहता है डे 1 पे जब वो इतना एक्सट्रीम खराब होके आता है तो आई एडवाइस देम कि 10 मिनट्स मेरे से सिर्फ बात करो व्हाट यू आर यूजिंग। वो हमें नहीं बताएँगे, राइट। वो ब्यूटी पार्लर जाएँगे, वहाँ जाके हुँ, डब्बे वाली क्रीम लेके उसे लगाएँगे और हमारे पास वो लेट स्टेज में आते हैं और वो स्टेरॉइड इंड्यूस ही बोलते हैं हम वर्ड। तो उसके कारण बहुत सारे स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं प्रेगनेंसी में, जो स्ट्रेच मार्क्स आपने सुने हैं वो आते हैं, वो इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं जो कि लगाए जाते हैं। उसके कारण जी। चमड़ी पतली हो जाती है, यू फील मोर एज्ड, आपकी फाइन लाइन्स 30s में ही आने लग जाती है अगर आप फेस पे भी वो ट्यूब लगाते हैं। हुँ, तो हुँ, देयर आर हुँ, हुँ। सर्टेन वेरी
साइड इफेक्ट्स, और उसके बाद उसको फिर हमें लेजर से या देयर आर मेनी मोडालिटीज उसको ठीक करना। राइट। डॉक्टर, ये तो हम एक्सटर्नल चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। क्या पॉसिबल है फंगल इन्फेक्शन इंटरनली भी हमें अफ़ेक्ट करे कहीं न कहीं अगर कंडीशन को प्रोलॉन्ग किया जाए तो? इंटरनली इन द सेंस हमें अगर लाइक अगर हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो डेफिनेटली हुँ। कहीं ना कहीं वो फंगस आपकी लाइफ को डिस्टर्ब ही करेगा, बिकॉज मैं आपसे ये केस इसलिए शेयर करता हूँ। एक आईटी थे जो यहाँ से यूएस बेस्ड कंपनी से थे और उनको रात की शिफ्ट थी, तो कहीं न कहीं उनका जो वर्क परफॉर्मेंस है वो बहुत डाउन हो गया, बिकॉज़ वो पूरी रात दे गॉट अ सीवियर इच। इट्स कॉल्ड एन मंकी इच, जो कई बार हो जाती है बिकॉज़ अगर फंगस ट्रीट नहीं होता है टाइम पे तो कहीं न कहीं उसका फेस swollen होना, रेडनेस होना, इच होना, दैट इच गोज़ ऑन एग्रीवेटेड एंड दैट पैचेस विल मेक द थिंग मोर प्रोन कि वो और ज़्यादा डिसीज़ को इन्फ्लेंट करे और डिसीज़। तो कहीं न कहीं अगर हम इंटरनली इसको ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो दूसरे ऑर्गन्स तो इफ़ेक्ट नहीं होते, बट येस द स्किन शोज़ द चेंजेस कहीं न कहीं। राइट, राइट। So we are saying that stress can also be one of the reason, वन ऑफ द यस, yes, behind बिकॉज़ the आपका trigger. It can इर्रेगुलर also be what. डाइट होगा, इर्रेगुलर जी, स्लीप होगा, आप टाइम पे सोएंगे नहीं एंड मॉर्निंग वेकअप आपका प्रॉपर नहीं होगा, तो आपका पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब रहेगा। फूड हैबिट्स सही, राइट, तो डेफ़िनेटली ये टाइप की डिसीज़ेज़ और प्रोन होगी और ज़्यादा डिसीज़ एग्रीवेट। राइट। सो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान देना है और एक बेहतरीन एक्सपर्ट के अंडर ही हमें रहना है और ट्रीटमेंट को बीच में नहीं जो मुझे छोड़ना है। सुन ये रहे हैं सारी वो चीज़ों ये का हमें बिल्कुल। जी, जी डॉक्टर। ताकि और ईज़ी रहे, हमारा कन्वर्सेशन और बेटर हो। मंदसौर के नियर बाय जनता जो भी उदयपुर से इंदौर के बीच में मेरा लाइव सेशन देख रही हो, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कोई भी आपकी क्वेरीज़ हो तो आप ज़रूर पूछें। जी, जी। वेल फिर से मैं उन लोगों के लिए भी बोलना चाहूँगी जो सिर्फ़ मध्य प्रदेश एरिया में नहीं है, बाहर भी है। अगर कोई भी आपके निजी मामले हैं, आप हमारे चैट बॉक्स पे हमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वी विल मेक श्योर वी विल आस्क दोज़ क्वेश्चन्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइव। डॉक्टर, हमें बताइए, लेट्स नो अ लिटिल बिट अबाउट द ट्रीटमेंट। क्या-क्या फिलहाल ट्रीटमेंट ऑप्शंस है टू ट्रीट द कंडीशन करंटली? There are oral and topical solutions which are available. So there हुँ, हुँ। we need to give the proper doses. There are syrup forms also available for the baby which is below 2 years, for the baby above 2 years, in between 5 years. So there are multiple options available for this type of treatment. So there are variants of fluconazole, itraconazole. The zols are working very good, and for हुँ, the हुँ। resistant fungus, so we have the topical applications including terbinafine, and there are many other type of clotrimazole. So this type of medicine will work wonderful on the disease and their variants. राइट। सो डॉक्टर, ये जो एंटी फंगल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या लॉन्ग टर्म यूसेज ऑफ दिस एंटी फंगल कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके? मैम साइड इफेक्ट्स तो डिपेंड करता है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम अगर 3-4 मंथ्स दे रहे हैं तो वी नीड टू सी द प्रोफाइल ऑफ लिवर, so we do a हुँ, basic routine investigation before prescribing the medicine, maybe in the mgs like 100 mgs or 200 mgs daily. So we need to go for the serum electrolyte, hemoglobin और liver profile. तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को इसके साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े हो सकते हैं। अगर हम प्रॉपरली उसको डाइट का काउंसिल करते हैं, स्लीप और लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करते हैं, तो द साइड इफ़ेक्ट रिड्यूस हो सकते जी। तो अगेन अंडर एन एक्सपर्ट सुपरविजन आपको रहना है और बिल्कुल भी सेल्फ ट्रीट नहीं करना है आपको खुद को, बिकॉज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एक्सपर्ट ही आपको बोल पाएँगे क्या आपके लिए सही है। डॉक्टर, बहुत तरीके के फंगल इन्फेक्शन के बारे में हम बात कर चुके हैं आज शुरुआत से ही। इनमें से सबसे सीरियस अगर आप कहेंगे अपने एक्सपीरियंस से, तो कौन-सा फंगल इन्फेक्शन होगा? बॉडी के किस पार्ट में होता है वो फंगल इन्फेक्शन? हैं। This is most common areas below abdomen area and around the हुँ, genital
एरियाज जो हम एक नॉर्मल भाषा में फेसबुक लाइव के ऑडियंस के लिए बोलेंगे, जांघों की खुजली बोलते हैं, जो बैक साइड हो सकती है, बट हुँ, लाइन हो सकती है, अंडर आर्म्स में हो सकती है, जो जो हिडन एरियाज है वहाँ पे सब जगह फंगस मोर प्रोन होता है इन्फेक्शन को और बढ़ाने के लिए। इट्स ए सीवियर जी, रीचिंग प्रॉब्लम, तो कहीं ना कहीं पेशेंट वही चीज हमें बताता है बाहर कि बस थोड़ा सा दाग हो रहा है। हमें एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। मैं सारे डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी साथ में कंपाउंडर्स है, जो भी स्टाफ टीम मुझे सुन रही हो, कि आपको पेशेंट चाहे कितना ही मना करे, बट हमें एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उसे टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक भी चीज़ से उसकी कई जगह हमारी डिसीज़ का वेरिएंट चेंज होगा सकता है और डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल सकती राइट, राइट। अ, मूविंग अहेड डॉक्टर, हम ऑलमोस्ट आज के सेशन के अंत में आ गए हैं। डॉक्टर, एक बहुत बड़ी समस्या अगर हम फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात करें तो, सबसे बड़ी समस्या है द रिकरेंस ऑफ फंगल इन्फेक्शन। मतलब हमेशा एक संभावना रहता है कि वो फंगस फिर से आपके शरीर को अफेक्ट करे और आप फिर से उसी चीज से फिर से सफर करें। इसका कारण क्या हो सकता है और इसके साथ डील करने का तरीका क्या है डॉक्टर? है। एरियाज़ जहाँ पे हम रिकरेंस देखते हैं वो भी ग्रॉइन एरिया होने के कारण मेनली होता है फूड हैबिट्स। अगर हमारा ओबेसिटी, शुगर, लॉस ऑफ एपेटाइट, देयर आर समटाइम बहुत ज़्यादा तो एक बार दिखते हैं, तो हम पेशेंट बोलते हैं आपका फ़ॉलो-अप इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कई बार हम देखते हैं स्पोर्ट्स पर्सन को, अगर वो बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज़ पहले नहीं कर रहा था और फिर उसके जो सॉक्स है, वो प्रॉपर वो रोज़ नहीं धो रहा है, तो कहीं न कहीं वो रिकरेंस होगा। उसके सॉक्स के बीच के एरियाज़ में वो फंगस के पेट्स के यहाँ पर पड़ने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो हमें कहीं न कहीं कुछ पाउडर्स ऐसे होते हैं जो बिफोर गोइंग आउट फॉर द वॉक, जॉग, एक्सरसाइज़ हमें वहाँ लगाना रहेगा, ताकि वो पेट्स पे ना, तो रिकरेंस बहुत अच्छे से स्टॉप हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ बार-बार, इस डिसीज़ में काउंसलिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ऑन द डे 1, राइट। व्हिच इज़ लैकिंग इन दिस टाइप ऑफ हम्म, एरा। अभी मेरे कई जूनियर्स भी यहाँ वर्क कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि वो भी यही चीज़ को इम्पोर्टेंस दें कि वी नीड टू टॉक टू द पेशेंट। ऐसा नहीं हो कि हाँ, ये दवाई लो, 1 महीने बाद आना। दे नीड टू टेल, बिकॉज़ कहीं न कहीं दिस वेरिएंट्स यूज्ड टू कम अगेन। राइट। वेल, इन द मीनवाइल, यू नो व्हाट टू डू। आप सभी अपने सवाल हमारी चैट बॉक्स पे लिख के हमें भेजें। विल मेक श्योर विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। वेल, वी आर इन डिस्कशन विद डॉक्टर गुंजन मेहता एंड आज एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन। मॉनसून आ चुका है। ये एक बहुत बहुत वाइटल टाइम है जब हम देखते हैं कि लोग इस पर्टिकुलर कंडीशन से सफर करते हैं क्योंकि मॉइस्चर है हर जगह और पीपल आर मोर ससेप्टेबल ऑफ सफरिंग विद द कंडीशन ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ध्यान बरतना है सभी को और अपना ख्याल रखना है। और अगर ऐसा कुछ भी बदलाव आप अपने स्किन में देखते हैं, देन मेक श्योर आप अपने नियरेस्ट एक्सपर्ट के पास तुरंत जाते हैं, बिकॉज़ आज इस सेशन की शुरुआत में ही हमने जाना है कि फंगल इन्फेक्शन जो है, इट्स कंटेजियस। मतलब छूने से फैल सकता है ये कंडीशन। तो बिल्कुल भी अपने आसपास के लोगों के लाइफ को आप रिस्क पे ना डालें। मेक श्योर आप अपने नियरेस्ट एक्सपर्ट के पास तुरंत जाएँ। घर पे अगर बच्चे हैं तो प्लीज़ उनसे दूरी बरकरार रखें। घर पे अगर बुजुर्ग हैं तो उनसे दूरी बरकरार रखें। क्योंकि उनका इम्यूनिटी उतना शायद बेहतर ना हो कि वो उस कंडीशन के साथ टैकल कर पाए। सो मेक श्योर यू एवरीबॉडी इज़ अलर्ट इफ एनी चेंजेस ऑकर्स इन योर बॉडी। आप अपने नियरेस्ट एक्सपर्ट के पास तुरंत जाएँ, ना कि फार्मेसी में जाएँ या किसी केमिस्ट के पास जाएँ। डॉक्टर यस, एंड जी। इवन आज मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, दिस इज़ वर्ल्ड विटिलिगो डे। आज सफेद दाग के लिए जो भी मरीज है, मैं उन्हें भी कहना चाहूँगा कुछ वर्ड्स, कि कलर से आप अपनी लाइफ़स्टाइल को और अपने आजू-बाजू के लोगों से मत जज कीजिए।
सफेद दाग ल्यूकोडर्मा एक बीमारी है जो कि ट्रीटेबल है। अगर आप सही समय पे डर्मेटोलॉजिस्ट के यहाँ पहुंच जाएंगे तो विटलिगो जैसी बीमारी जो कि एक इंसान को अंदर से साइकोलॉजिकली डिप्रेस करता है, उसके परिवार को डिप्रेस करता है। छोटे बच्चे अगर स्कूल जाते हैं हुँ। तो उनको टिफिन वगैरह शेयरिंग में भी दूसरे बच्चों को भी यही बताया जाता है कि ऐसी छुआछूत की बीमारी है, तो वो कंटाजियस नहीं है, एक ऑटो इम्यून डिसीज है और इस कारण से वो उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। I got a question from the team, does bathing more often help? Yes, definitely. हुँ, हुँ। अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है फंगस में और हम कहीं ऐसे जगह से वर्क करके आ रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन साइट है, बहुत ज़्यादा धूप में रहने का काम है, तो कहीं न कहीं वो इम्पैक्ट करता है कि दैट हेल्प द पीएच मेंटेनेंस एंड इवन एंटी फंगल सोप्स आर अवेलेबल व्हिच विल हेल्प। राइट। डॉक्टर एक आखिरी क्वेश्चन हमारे व्यूअर पूछते हैं इफ अगर किसी के पैर में फंगल इन्फेक्शन है तो सॉक्स पहन सकते हैं व्हाइल वेयरिंग शूज़ जब बाहर जाते हैं वो? हम डेफ़िनेटली पहन सकते हैं। हमें बस ये ध्यान रखना रहेगा कि अच्छे ब्रांड्स के आप सॉक्स लीजिए। क्लीनिंग हाइजीन इम्पोर्टेंट है। हमारे फंगस के इंटरडिजिटल स्पेस के बीच में हमें प्रॉपर लूकवार्म वाटर से सफाई करना चाहिए। वहाँ पे जो डॉक्टर ने एडवाइस की हो, अगर एंटी फंगल क्रीम की हो, पाउडर किया हो, तो उसे प्रॉपर लगा के फिर हम सॉक्स पहन के जाएँ तो डेफ़िनेटली दैट विल हेल्प। देयर इज़ नो इश्यू। राइट, राइट। डॉक्टर इसी के साथ आज हम इस सेशन के अंत में आ चुके हैं। वी वुड लाइक टू थैंक यू एनफ फॉर योर टाइम बट हमें जाने से पहले हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ कह के जाइए। एनी टेक होम मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स यू वुड वांट टू फॉरवर्ड टुडे? The take home message from this type of online session is most important message to all the nearby zone people or the people who are listening to me कि हमेशा देखें, अगर आप गूगल कर रहे हैं तो आप करिए कि कौन सी कार खरीदनी है, खाना क्या खाना है, आप हर चीज़ का गूगल करते हैं। तो आप सबसे पहले अवेयरनेस के लिए गूगल करिए कि मुझे ये हुआ है, मुझे किसको दिखाना है, मुझे ये हुआ है, मुझे किसको दिखाना है। दैट विल हेल्प यू आउट। अगर आप सही टाइम पे सही जगह पर आप पहुंच गए तो डेफिनेटली हर बीमारी को हम ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि साइंस डे बाय डे बेटर हो रहा है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इस चीज़ में आज एंटी फंगल्स पे हम सॉरी फंगल्स पे बात कर रहे हैं और एंटी फंगल मोडालिटीज बहुत अवेलेबल है। तो डेफिनेटली गिव a try to a doctor who has learned and who has given in this profession for around 10 to 15 years. So definitely कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस काउंट करता है। जस्ट उस टाइम आप थोड़ा-सा रुपया, शर्माहट या आपको लगता है कि हम क्यों दिखाएँ, क्या होगा दिखाने से, आगे जाके आपको ही वो डिसीज़ बहुत परेशानी देगी साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली और वेल-बीइंग में भी डिफिकल्टीज़ आएगी। विल हेल्प। Right. Well, that was the expert advice for today, and that was Dr. Gunjan Mehta for all of us. Thank you so much once again, Doctor, for your valuable time. It has been quite an informative session for our viewers today, and we look forward to many more such sessions in coming times. Also, thank you, viewers, for your excellent participation. For more informations and updates on skin health and care, stay connected on our Facebook page, All About Skin Wellbeing. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. You all stay safe and stay healthy. Have a good day, everyone. थैंक यू।